Hello and welcome to the NewsX Sunday Guardian Roundtable. Well, for Congress watchers, it has been a very interesting week, 10 days, what with this election, or rather this election that is masquerading as an election. We've seen some big leaders throw their hats in the ring, some cut down to size, but maximum damage has it been done to the Congress High Command because their favored candidate, as we saw, decided not to contest the election. We also what happened in Rajasthan where they didn't run Raj. After that, there was some damage control, but have they recouped lost ground? I think if you ask me, the biggest test will be what happens in Rajasthan, not who becomes the Congress president, because that is where the High Command will have to see if it can make its mark or not. If they can replace Ashok Gehlot with, say, Sachin Pilot, as has been promised to him, then it shows that they have authority over the state. If they do not, even if they go for a halfway measure, what signal does it send about the High Command's authority? That is something we're going to be discussing in the roundtable today. Joining me are three veteran Congress watchers, journalists, authors, columnists. We have Rashid Kidwai, we have Avinash Kalla, and we have Adesh. Three people, welcome to this conversation. We have Avinash and Adesh joining us for the first time. But Rashid, really, I'll begin with you to set the conversation in perspective. What are you expecting now that the dust is somewhat settling? I think, Priya, it's a litmus test for Sonia Gandhi for High Command's authority. As you said, High Command somewhat became, so to say, low command. So therefore, now it's as far as Rajasthan is concerned, for me, it is no longer Ashok Gehlot versus Sachin Pilot. It is now between the Congress leadership, that Gandhis, and Ashok Gehlot. So how they deal and negotiate, we know that there was a script according to which Ashok Gehlot was to become Congress president, and that in turn he could have vacated Rajasthan turf, which he didn't do. So now can the Congress High Command, Sonia Gandhi, leave Mr. Ashok Gehlot high and dry before Diwali or just around that time? Remember, the time is running out. Sachin, as far as I am concerned, he has played his cards well. He would just be waiting for Sonia Gandhi to act. And if she doesn't act, then of course it leads to a new situation. See, Sonia Gandhi, when it comes to self, she makes very judicious decisions that have been hailed. But was it about joining 69 after Rajiv Gandhi assassination, other act of renunciation, office of profit resignation, all these things. But when it comes to the Congress organization, I think she goes by this perceived hierarchy, all kind of games that congressmen play. And in the end, what we call it in Hindi, choo choo ka murabba. Matlab, the words comes out. And the recent things, developments have shown the same thing. I hope Rajasthan would not go that way. Just one last thing. When TV Narasimha Rao, sort of nominated Sitaram Kesari as his successor, the buzz in Congress was कि राव साहब ने कांग्रेस से बदला ले लिया. अब मैं पूछना चाहता हूं, और मेरे जो दो मित्र हैं वो बता सकते हैं, अब आज कौन कांग्रेस से बदला ले रहा है? Very good question and quite a heavy one. Avinash, you are there in Rajasthan. तो अब ये कांग्रेस के कौन बदला ले रहा है? That's I think the good question for the debate. देखिए, बदला लेना would be a strong word, पर मैं ये कहूँगा अशोक गहलोत अब टेस्ट कर रहा है, और ये अभी से नहीं हो रहे हैं. अशोक गहलोत काफी समय से हाईकमान को टेस्ट कर रहे हैं. सुनने में ये आ रहा था कि जब से उदयपुर मीट हुआ तब से उनको क्लियर था कि आपको ये पोस्ट वेकेट करना है, बट ही हैज बीन प्लेइंग इट ऑल अलोंग. और जब से ये नाम डालना और शुरू हुआ और उन्होंने वो सिग्नल भेजने शुरू किए, ये पूरा क्लियर था कि वो कभी राजस्थान छोड़ के नहीं जाना चाहते. ये ऑफर तो उनके पास बहुत समय से था. तो उन्होंने अपना सारा जो वो कल बोल रहे थे कि मैं 50 साल से पार्टी का वफादार रहा हूँ, अब एक ऐसा टाइम आने पर लग गया है कि अशोक गहलोत को बताना पड़ रहा है कि मैं 5 दशकों से इस पार्टी का वफादार रहा. तो अभी टर्फ बहुत जिसे कहते हैं वॉलेटाइल है, और राजस्थान में अगर आज से देखें तो एक वो होता है ना, एक भयंकर तूफान के बाद जो शांति सी हो जाती है. फिलहाल सब कुछ शांत है, हर कोई वेट कर रहा है कि मूव क्या होगा. सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन है केसी वेणुगोपाल की उस बात का कि 2-3 दिन में वापस सीएलपी मीट कॉल होगी. 2 दिन मुख्यमंत्री ने वहां निकाल लिए, आज वापस आए और आते ही चले गए. फिर उसी रूरल ओलंपिक्स में जहां पे उन्होंने ये सारी व्यू रचना करी थी कि सारे एमएलए को लाइन अप कर लिया और वो खेल रहे थे, और वो जा हर बार कबड्डी के लिए रहते. तो राजस्थान में की निगाहें
अभी कांग्रेस हाईकमान की है कि वो सीएलपी मीट कब होता है और उसके आगे कब बढ़ते हैं। पर हाँ, एक चीज बदली है उस दिन के रिवोल्ट के बाद। अब जो क्या का स्ट्रांग है, so the number is changing very fast. Many people have released videos and few of them are waiting. Now if the observers come and they meet one by one with the party representatives, the pendulum will swing, and then it will be interesting to see how many people stay loyal to Mr. Gehlot. And mind you, Priya, the people who are in fray or who have been questioned, look at it. Mr. Dhariwal is 80 years old. Next election doesn't look very likely. Then you have Pratap Singh Khachariyawaz. He will be the most vocal one because he was a staunch pilot loyalist who ditched him and went to the other side. So he's fighting for his pay. Then you have Mr. Mahesh Joshi. Take Ashokji's blessing out of him. He doesn't have any ground support. So people who are around are the ones who are scared the most. Otherwise, those who are loyalists have been saying that we will be with the High Command. So all eyes on Delhi. When do they send their messengers next time? That is a key question. When, and I think also introduce him to our viewers, is someone, I think all of us who are on Twitter, social media, and who are interested in the Congress have to follow Adesh, because his tweets are, I think, creating a buzz by themselves also, and he's someone who has a lot of information on what's going on. So Adesh, राजस्थान के बारे में क्या हवा बदल रही है, as Avinash said, क्योंकि पंजाब में भी यही हुआ था. When the High Command says ये हमारा कैंडिडेट है और one by one मिलेंगे, तो काफी MLAs दल बदल सकते हैं. Thank you, Priya, for saying such kind words for me. First of all, कि एक बात हो रही है कि पायलट के पास विधायक नहीं, लेकिन मैं कल रात को पायलट से बात कर रहा था. उन्होंने मुझे बताया कि जब 2018 में नंबर आए थे, जो हमें जितने भी नंबर आए थे, 100 आए थे, 102 आए थे, 104 आए थे, 105 आए थे, जब मैं और अशोक गहलोत बराबर थे, तो तब विधायकों से एक एक करके उनका मत पूछा जाता कि वो किसके साथ है. तो समझ में आता है कि हाँ, मैं वाकई में ही विधायकों की रेस से बाहर हो गया. दूसरा, इसके 3 उदाहरण देता हूं मैं आपको कि विधायकों का क्या रुख होता है और कैसे आलाकमान कल्चर कांग्रेस है, और वो रहा है, आज से नहीं है. सबसे पहले इसी साल पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले जब कैप्टन साहब को हटाने की बात हुई और विधायक दल की बैठक बुलाई गई, तो कैप्टन साहब के जितने लॉयलिस्ट थे वो सब उस बैठक में पहुंच गए. यानी कैप्टन साहब नहीं पहुंचे, बाकी सब उसमें आ गए. तो ये एक हाई कमांड कल्चर है. और अगर विधायकों की मानते तो चन्नी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनते, सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री होते, क्योंकि विधायक उनके समर्थन में थे. तो ये हुआ कांग्रेस का हाई कमांड कल्चर. इसके अलावा 2004 में जब हरियाणा का चुनाव हुआ और आउट ऑफ 90 67 सीट्स कांग्रेस को मिली, तो भजनलाल उस कैंडिडेट मंत्री, लेकिन हाईकमान तय किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, बशर्ते उनके पास 7 विधायक है या 40 विधायक है, ये मैटर नहीं करता. भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया. इससे पहले 1998 में राजस्थान में 156 सीटें आई. परशुराम अदेरना इतने बड़े नेता थे, जाट नेता थे कांग्रेस के, लेकिन हाईकमान ने चाहा कि अशोक गहलोत, और खासकर सोनिया गांधी ने चाहा कि अशोक गहलोत हमारे उम्मीदवार होंगे, और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया. उसी हाईकमान ने, जो हाईकमांड आज अपनी अथॉरिटी वापस स्टैब्लिश करने की कोशिश राजस्थान में कर रही है, वही हाईकमांड जो कुछ राजस्थान में हुआ उससे सोनिया गांधी बहुत आहत है, हर्ट है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस अशोक गहलोत के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी, जिनको मैं अपनी कुर्सी देना चाहती थी कांग्रेस प्रेसिडेंट की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. दरअसल अशोक गहलोत की अगर कोई नाराजगी थी, उनको कोई आपत्ति थी, तो वो 2 बार उनकी मीटिंग हुई कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ. वो बंद कमरे में बैठ के बातचीत कर सकते थे, किसी बात पे राजी नहीं थे बता सकते थे. लेकिन जिस तरीके से सड़क पे लाके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट उसको चैलेंज किया गया, तो वो मुझे लगता है कि था हाजी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कांग्रेस को. दूसरा, सचिन पायलट हमेशा एक बात को कहते हैं कि मैंने 2020 में अशोक गहलोत के खिलाफ राजनैतिक, मैं इस शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूं कि मैंने राजनैतिक विरोध किया. मैंने कभी नहीं कहा मैं बीजेपी जाऊंगा, लेकिन अशोक गहलोत ने जो किया वो सोनिया गांधी के खिलाफ किया. तो ये डिफरेंस है इन दोनों ही ये जो घटना घटी है, एक 2022 में और एक 2020 में. अब रही बात विधायकों की, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इसको आप जाइए परसों जब अशोक गहलोत ने बाहर मीडिया के सामने आके कहा कि मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से माफी मांगी है, उसके मुझे लगता है 3 घंटे बाद
संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल बाहर आए सोनिया गांधी के घर से, हम सब ने उनसे पूछा कि राजस्थान का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में राजस्थान का फैसला हो जाएगा। अब इस बयान को अगर मैं डिकोड करूं, तो अगर मैं हाईकमांड की स्पीड देखूं, तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में बदलाव हो रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ये भी कह सकते थे कि अभी देखते हैं, अभी चल रहा है, नहीं बोलते कि भैया कांग्रेस का चुनाव हो जाए उसके बाद हम इस पे फैसला करेंगे। तो हाईकमांड की स्पीड को डिकोड करूं तो लगता है कि वहां राजस्थान बदलाव की ओर है, लेकिन परिस्थितियां समझूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है हाईकमांड एक फॉर्मूला लेके आए और कहे कि इक्वल पावर शेयरिंग दोनों के बीच में कर दीजिए। तो आज तो ऐसी कोई खबर फिलहाल है नहीं कि पर्यवेक्षक जयपुर जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल तक ये संभावना हो सकती है कि वापस 2 ऑब्जर्वर जाएं जयपुर में, विधायकों से बात करें, एक लाइन का प्रस्ताव फिर पारित होगा और वो प्रस्ताव पारित होकर सोनिया गांधी के पास आएगा। यानी एक बार एक्सरसाइज होगी कि हाईकमांड अथॉरिटी को वापस रिस्टोर किया जा सके। जो अशोक गहलोत को लगा कि जो कुछ घटना घटी वो ठीक नहीं है, उससे मैं भी आहत हूं और मैंने उसके लिए माफी भी मांग ली है। तो अभी ये कहना कि एक्चुअल होगा क्या बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाईकमांड की स्पीड और परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं, कुछ भी हो सकता है। Correct. हम predict नहीं कर सकते रशीद, but we can read events and analyze them. That is, what we are here for also. So high command की speed ये भी हो सकती है कि एक लाइन प्रस्ताव ले आए, लेकिन वो डिसीजन दिवाली के टाइम दे, जैसे कि आप कह रहे हैं। दूसरा, ये 50-50 फॉर्मूला जो आदेश ने बात की, इसके बारे में मैंने भी सुना है कि पीसीसी चीफ एक कोई कैंप का बनेगा और सीएम कोई कैंप का। क्या सचिन पायलट फिर से राजी होंगे पीसीसी चीफ के लिए? ही इज ऑलरेडी बीन देयर डन दैट, ही वांट्स टू बी चीफ मिनिस्टर, नहीं? बिल्कुल, देखिए प्रिया, नाउ दैट यू सी इलेक्शन इज जस्ट ऑलमोस्ट 13 months away, so obviously the incumbent, if you want to bring something new, then there has to be a new chief minister, and that has been an old demand. Mr. Sachin Pilot has been there for 6 years, between 14 to 20 he has been the PCC chief. Now coming to Congress party, again I would say they have a unwritten rule, thanda karke khao. So they don't want to act the heat of the moment. See, so revenge is also best served cold. Served cold. Yes. Precisely. So we have to decipher that what is in mind, because if Congress had to act on its own, then maybe they should have issued show cause notice to Ashok Gehlot, who was privy to it and who was in the know of things. There is also, Priya, I'm gathering that all the time he was not using, when he was with Mr. Kharge, he was not using phone, but he had access to a satellite phone. I mean, so all kind of things. So if there is a politician among politicians, see, why would Ashok Gehlot, go down so easily? I'm glad Adesh has cited some example. Actually, Priya, somebody who has studied Congress in academic sense, the Congress High Command has always been on top of things. In all the time, except for Devraj Ars, who was the Congress president and chief minister, so he was able to walk away with the government. Nobody. Even when Rajshekhar Reddy died, he was killed in a accident, and when there was a problem between Congress High Command and Jagan Mohan Reddy. Jagan Mohan Reddy could not split the Congress at that point of time. It was only after election that Jagan Mohan formed a separate political party, and of course he won. But Congress has not. I mean, all the towering chief minister, Arjun Singh, Narendra Tiwari, I can go on giving names and examples. Nobody could say that they have the majority. So it's a myth. Priya, me and you, we had covered the day Ajit Jogi had taken oath in Chhattisgarh. How many MLAs were there with Ajit Jogi? Perhaps 2, perhaps 3. But Jogi turned out to be the full-time chief minister. So that's the legacy. Only thing is whether Sonia Gandhi's style is working. Sometimes it's counterproductive, and that is where I say that whatever Rahul Gandhi wants or Priyanka Gandhi thinks, end of the day, it's get diluted. So the Congress is back to square one. Apart from reacting to what everyone says, I also want to understand this thing is why hold that CLP meeting? Kitni jaldi kyun thi? Kyun na they would have waited? Ashok Gehlot was ready to fight the president now. So why hold it so early before the election? Avinash. See, there was always a thing that if Mr. Gehlot files the nomination and becomes the president, then it's with him. He might go any which way. And everybody was very aware that he is
a very clever politician. He's somebody who would be having 2 to 3 schemes of things right up his sleeves. So nobody wanted to take that chance. Maybe the inside the party, the whole idea was there that if this guy gets into the position, then he would not listen to him. Okay. So that was the need. And again, since yesterday, it has been saying that, you see a lot of proxy WhatsApp messages and things have started going way. Situations have become so fast that many times you receive your own WhatsApp, tweet on a WhatsApp, because both the camps are flying things around. So one of the things that they have been saying ever since Mr. Kharge's nomination has been announced, the Ashok Gehlot camp and the supporters have been pushing, now will he resign or not? Now where is the talk of one man, one position? So today morning, Mr. Kharge submitting the resignation puts that question to rest. For the last 1 hour, the phone is not buzzing in that fashion now. So everybody was skeptical of Mr. Gehlot and his trick. And in all this equation, I see, the Congress party and the High Command missing a great trick. Somebody like Mr. Gehlot would have been a very good Congress president. A person that was the need of the hour. He is so smart enough that he absolutely, nobody had a clue that he'll do something like this in such a clinical fashion. That is true. His talent for, pulling a rabbit out of the hat and swinging the vote when it suits him is also something that I think a lot of Congress leaders would have found handy. I'm going to take a break and come back and keep this conversation going. So don't go away. Hello and welcome back to the NewsX Sunday Guardian Roundtable. Today we're taking a look at the Congress politics, but special focus on Rajasthan. And I have with me a panel of insiders and journalists who've been watching what is happening. Adesh, you heard this thing. So now, Aage, you think in terms of the way Gehlot is, what would he do? Will he turn rebel? Agar supposing, for argument's sake, कि High Command उनको हटाएंगे और सचिन पायलट या कोई और कैंडिडेट आएंगे, तो Gehlot, how would he react? देखिए, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने इंडिया के साथ कि मैंने सोनिया को भी सॉरी मैडम कहा है, उससे नहीं लगता कि वो किसी तरह के रिबल होने वाले हैं या बागी होने वाले हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनकी जो सबसे बड़ी पावर थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी कि वो गांधी परिवार के सबसे क्लोज हैं और वो उनके वफादार हैं, और इसीलिए उनको कांग्रेस अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था। दरअसल देखिए, जब 1 साल पहले चर्चा शुरू हुई थी कि गांधी परिवार से बाहर का अगर व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वो कौन होगा, उसमें सिर्फ 2 ही नाम थे। पहला नाम था अशोक गहलोत का, उत्तर भारत से आते हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, ओबीसी चेहरा, संगठन को जानते हैं, एनएसयूआई कांग्रेस से आए हैं, तो ये सब उनकी काफी, और कोशिश ये थी कि वो अलायंस भी कर सकते हैं, लोगों से बात भी कर सकते हैं, संगठन को खड़ा कर सकते हैं। और दूसरा नाम था कि दक्षिण भारत से मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो दलित चेहरा है, वो भी, उनका भी जो रिज्यूमे है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोशिश हुई कि उत्तर भारत से कांग्रेस अध्यक्ष बना, लेकिन हुआ वो सामने है, लेकिन साहब का नंबर आया। और इससे पहले, क्योंकि चन्नी को बनाकर, चरणजीत सिंह चन्नी को जब बनाया था, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने जो दलित मैसेज देने की कोशिश की थी वो वहां पे फेल हो गया। तो एक चर्चा ये भी शुरू हुई कि भैया दलित नहीं बनाएंगे, उसमें भी बहुत सारे नाम थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद मुकुल वासनिक थे, कुमारी शैलजा थी, सुशील कुमार शिंदे थे, तो उसको भी रूल आउट कर दिया गया था। लेकिन देखिए, नाम शायद रशीद किदवाई ने चलाया था, नहीं शिंदे साहब कुछ क्लोज लोगों में से है सोनिया गांधी के, लेकिन उनके जो हेल्थ है वो उनके साथ नहीं है, हेल्थ इश्यूज काफी है उनके साथ, और उनकी एज भी मेरे हिसाब से 84 के आसपास हो गई है। तो दलित को रूल आउट दिया गया था पंजाब के एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वापस से ही कांग्रेस को दलित पे आना पड़ा। खड़गे का जो उनकी जो लॉयल्टी है परिवार को लेके, देखिए गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति को हटाकर उन्हें राज्यसभा का नेता बनाया गया, 2014 में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया, 10 साल तक वो केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, लेबर मिनिस्टर रहे, यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री छोड़ के कांग्रेस हाईकमांड ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बना दिया। तो जहां तक गहलोत साहब की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो अब बागी होने के उनके तेवर जो है वो है, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी शक्ति जो उनको प्रोटेक्ट करती थी, जिस बात को लेके वो 3 बार के मुख्यमंत्री बने, जब वो बार बार कहते थे कि मेरा इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, तो वो अपनी लॉयल्टी को लेके बात करते थे। उसमें बात इस्तीफे की या परमानेंट की नहीं थी, वो ये कहते थे कि मैं तो आदमी ही उनका हूँ, मेरे पे तो उन्हीं का आशीर्वाद है,
जो वो कहेंगी मैं वही करूंगा। और यही कारण है कि सोनिया गांधी इस बार जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट है। चाहे कमलनाथ मिलने गए हो, अंबिका सोनी मिलने गई हो, सचिन पायलट मिलने गए हो, उन सब ने उस चीज को सोनिया गांधी के नेचर में महसूस किया कि नहीं, उन्हें वाकई में इस बात की बहुत तकलीफ है। और रही बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, एक वक्त ये भी आया था जब अंबिका सोनी और आनंद शर्मा अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में मध्यस्थता कर रहे थे, मीडिएटर थे, ताकि एक कम्युनिकेशन हो और कम्युनिकेशन के जरिए कोई सोल्यूशन निकले। क्योंकि बातचीत नहीं करना तो समाधान तो था नहीं, सोल्यूशन तो निकालना ही था, तो बातचीत तो करनी थी, फिर लगाएं किसको? तो कमलनाथ को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, ये जिम्मेदारी दी गई थी अंबिका सोनी को। उन्होंने अपने साथ अटैच किया आनंद शर्मा को। उन लोगों ने बातचीत की, कहा कि पहले अपना इस्तीफा दो और जाके फिर सॉरी फील करो, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। अब अगर वो इस्तीफा देते थे तो हो सकता था कि अशोक गहलोत फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते, लेकिन उन्होंने वो चूज नहीं किया। गहलोत साहब के आसपास के लोगों ने उन्हें ये समझा दिया कि इनकी कोशिश ये है कि पहले आपसे इस्तीफा ले लें मुख्यमंत्री पद का। और जब सोनिया गांधी ने शशि थरूर को ये कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होगा, इस बात से भी अशोक गहलोत थोड़ा घबरा गए कि एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे नॉमिनेशन करना है और फिर कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं होगा, इस तरफ से मेरा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है कि मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और मैं इधर चुनाव भी हार गया। उधर दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया कि एक व्यक्ति एक पद की बात हो, फिर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया एक व्यक्ति एक पद की बात हो। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस जो थे उन्होंने अशोक गहलोत को सोचने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अशोक गहलोत की गलती ये रही है, मैं कहूंगा हालाकमान की भी गलती ये रही कि दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिशिएट था। जब कमरे में बैठ के बातचीत हो रही थी तो आप लोगों ने उसको डेवलप क्यों नहीं किया? आपने खुल के बात क्यों नहीं की? सचिन पायलट की आपत्ति थी, गहलोत को तो बोलते, सोनिया गांधी को बोलते कि मैडम मैं ये नहीं कर सकता। जो छीछा लेदर आपने सड़क पे कराई वो बंद कमरे में होती, कितना अच्छा होता। और आप कहते कि आप ही मुझे बताइए कि मैं आपका कैंडिडेट हूं, कि आप मेरे पीछे खड़ी हैं। अब उसका वो कैसे वो दिखता कैसे? कल जब खड़गे ने फॉर्म भरा तो उनके प्रपोजर कौन थे? जो टॉप CWC है वो उनके प्रपोजर थे। तो ये चीजें बोलनी नहीं होती, ये तो सिंबोलिज्म होता है। और हुआ भी वही। आप खड़गे के प्रपोजर देख लीजिए, आप थरूर के प्रपोजर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन किसे कैंडिडेट है। तो कम्युनिकेशन गैप रहा अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच में, और ट्रस्ट डेफिशिएट रहा, जिसके कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और अशोक गहलोत ने अपना ट्रस्ट खो दिया। और कांग्रेस पार्टी के लिए अशोक गहलोत से बेहतर अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का इस वक्त नहीं हो सकता था, जिससे पार्टी का भी फायदा होता, अशोक गहलोत का भी फायदा होता और सचिन पायलट का भी फायदा होता। तो एक तीर से कई शिकार होने वाले थे, लेकिन वो तीर ही टूट गया। इनफैक्ट मुझे भी याद है वन इंसिडेंट अबाउट कितना राहुल गांधी अशोक गहलोत को ट्रस्ट करते थे। ये मुझे राजीव सतव ने बताया था। जब ये गुजरात का जब चुनाव था तो दे वर ऑल टुगेदर, अशोक गहलोत उस समय राहुल गांधी के साथ थे। तो किसी ने बताया था अगर राहुल गांधी से पूछो ना यू वांट टी और कॉफी, तो राहुल गांधी कहेंगे कॉफी, अशोक गहलोत कहेंगे अच्छा, मना नहीं करेंगे कॉफी पर, बोलेंगे चाय पीते तो ऐसा होता, चाय पीते तो ऐसा होता, चाय के ये लाभ है। इन द एंड ऑफ इट वो चाय ही पी लेते। तो ही हैड दैट थिंग ऑफ अ एल्डर मेंटोर, स्टेट्समैन, कुछ भी। बट रशीद, फाइनल वर्ड टू यू, हाउ डू यू सी नाउ खरगे हैंडलिंग? क्योंकि एक तरफ से उनकी फॉर्म में जैसे कि CWC के लीडर्स भी हैं, G23 के भी लोग ने साइन किया है, तो वो क्या यूनिफायर का रोल प्ले करेंगे? देखिए, Kharge's leadership has certain limitations, but allow me, I'm just tempted to narrate a story that tells you about, characters. We may not look at them, we are talking about Ashok Gehlot and others, in black and white. So there is a huge shade of gray. And how Congress operates, we must, get, and what I'm going to tell you, it may give you a glimpse of it. बात 80 के दशक की है, जब अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे और एक युवा थे और एक मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री में उनकी बड़ी अनबन थी। किसी ने कहा, मध्यस्थता कराई और बोला कि मुख्यमंत्री अगर अशोक गहलोत को बुखार आ रहा था कि उनसे जाके मिलने चले जाए, हाँ तो अच्छा रहेगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वो मुख्यमंत्री मिलने गए, उनकी जो संवाद हुआ अशोक गहलोत से, वो अगले दिन अखबार की सुर्खी बना, वर्बटम, मतलब लफ्ज व लफ्ज। अब वो मुख्यमंत्री बड़े हैरान रह गए, पुराने चाल के थे, बेचारे उन्हें समझ में नहीं आया। पता ये चला बाद में कि जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का संवाद हो रहा था, तो जो हमारे प्रोफेशन के जो संवाददाता महोदय थे, वो बाथरूम में बंद थे और सारी बातें सुन रहे थे।
तो अभी भी देखिए, जब वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने गए, हाथ में पर्चा कौन सा था, और उस पर्चे की फोटो खींची और उसकी पब्लिसिटी हुई. You see, so what I'm saying is that this is the art. The Congress may be out of power, but Congress has not forgotten. They actually excel in the art of politicking. So Mr. Kharge, one who's not, I mean, his CV may read very well as Adesh. He has to deal with life situations. That is. And So real politics. Thank you. No, we are totally out of time, but thank you, Rashid. Kharge is good on paper, on CV, but real politics में कितने होंगे? That is a test. I think he will be put to test. Am I right? That's what you're saying. Priya, actually, Kharge is admin head. He's the admin head, and the CEO is still doing Bharat. But thank you all for this conversation, and all of you for watching this show. We'll be back again same time next week. Thank you. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.